Hello, friends. Good afternoon, all of you. Welcome to વેબ સંકુલ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ. હું ચિરાગ જોશી આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે તથાસ્તુ એપિસોડ 1માં જોયા હતા સંસ્કૃતની પ્રશ્નોત્તરી, બરાબર? અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો એ પ્રશ્ન એ પ્રતિસાદ હતો કે ભાઈ સાહેબ ફટાફટ અમને હિન્દીનું પણ કંઈક નવું નવતરણ આપો. તો આજે તમારી સમક્ષ હિન્દીના એવા પ્રશ્નો લઈને આવ્યો છું જે ગઈ વખત એક્ઝામમાં પૂછાયા છે, બરાબર? એટલે કે વર્ષ 2017માં ટેટ 2ની પરીક્ષામાં જે પ્રશ્નો પૂછાયા હતા તેમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો આપણે લીધા છે કે જેનો આપણે આજે જવાબ મેળવીશું અને કઈ રીતે એનો જવાબ આવે, બરાબર છે? અને આ તથાસ્તુ સિરીઝનો અમારો એકમાત્ર હેતુ છે કે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ફટાફટ જે આવનારી પરીક્ષા છે એમાં આપ જ્વલંત સફળતા હાંસલ કરો અને આપ આપના સમાજનું, આપના પરિવારનું નામ રોશન કરો, સિદ્ધ કરો, બરાબર છે? યા હોમ કરી પડો ફતેહ છે આગે. શરૂઆત કરીએ છીએ એપિસોડ 2 ચિરાગ જોશી સાથે હિન્દીની પ્રશ્નોત્તરી તથાસ્તુમાં આપનું સ્વાગત. સર્વપ્રથમ આપણે તથાસ્તુમાં આ પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં એક થોડી તમને મારે ઝલક આપવી છે. ઝલક એ છે મિત્રો કે ભાઈ વર્ગ 3ની જો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો જે પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે વેબ સંકુલ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને વેબ સંકુલને હવે ઓફલાઈન પ્લેટફોર્મ પર એટલો જ પ્રતિસાદ જેટલો ઓનલાઈનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આપ્યો છે. હા, પહેલાં તો અહીંયા એક લખેલું છે કે ભાઈ તમે આવો છો તો એના માટે રજિસ્ટ્રેશન તદ્દન ફરજિયાત છે. તમે જો વર્ગ 3ની પરીક્ષાની જો તૈયારી કરવાની શરૂઆત કરવા જતા હો, બરાબર છે? તૈયારીને હવે શરૂઆત કરવા માટે કોઈક સ્થળ શોધી રહ્યા છો તો યસ, તમે ચોક્કસ સ્થળે આવી ગયા છો મિત્રો. ચોક્કસ સ્થળે એટલા માટે કે અહીં પહેલાં તો તમને બધી વિશેષતા સમજાવીશ, પછી હું તમને કહીશ કે ભાઈ અહીંયા તમે જે ક્લાસ જોઈન્ટ કરવા ઈચ્છો છો એના માટે પહેલાં તો ગુજરાતના સર્વશ્રેષ્ઠ જાણીતા કહેવાય છે કે તમને ફેકલ્ટીઝ દ્વારા અહીંયા કોચિંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા જે ફેકલ્ટીઝ જે છે એ હંમેશા કહેવાય છે કે સતત સમય સાથે અપડેટ થયા કરે છે. સમય સાથે અપડેટ થવું એટલા માટે કે આવનારી જે એક્ઝામની જે જનરેશન જે છે એ જનરેશન એક્ઝામ ચેન્જ થાય છે. તમે જોવો છો કે થોડા સમયથી જીપીએસસી જે 1-2ની એક્ઝામ લેવાતી હતી એ જ પ્રમાણે હવે ક્લાસ 3ની પણ એક્ઝામ લેવાવા લાગી છે. તો એ પ્રમાણે કહેવાય છે કે આપણને શિક્ષણ આપી શકે એવા સક્ષમ, બરાબર છે, એવા તમને ફેકલ્ટીઝ જે છે આ પ્લેટફોર્મ પર મળશે, બરાબર છે? એ ખાતરી સાથે કહીએ છીએ મિત્રો, કેમ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે જોડાય છે અને જ્યારે એમને એ સફળતા મળે છે એમને એક સંતોષ મળે છે અહીંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ, અને એ સંતોષના જે પાછળથી અમને પ્રતિસાદ, એમના રિવ્યૂઝ જે મળ્યા છે એ રિવ્યૂઝ અમે તમને શેર કરી રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, જો તમે વર્ગ 3ની પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવા ઈચ્છો છો, કેમ કે માનો કે કદાચ તમે એમ ઈચ્છતા હોય કે ભાઈ હું 1-2ની તૈયારી કરું, પરંતુ એના માટે તમારો બેઝ ક્લિયર હોવો જરૂરી છે. તો વર્ગ 3ની તૈયારી માટે સેકન્ડ ઓફલાઈન બેચ, યસ, કેમ? તો ભાઈ ફર્સ્ટ ઓફલાઈન બેચ વિદ્યાર્થીઓથી કહેવાય છે કે એકદમ ભરચક ભરાઈ ગઈ છે અને આ બેચમાં હવે સીટ તમને મળી શકે એમ નથી મિત્રો, બરાબર છે? અને આપ સૌનો ખૂબ પ્રેમ જે છે અમારી સાથે જોડાયેલો છે, એટલા માટે તમે જો જોડાવા ઈચ્છતા હો તો સેકન્ડ બેચમાં જોડાઈ શકો છો. અને આ પ્રોપરલી જનરલ બેચ છે જેમાં તમને બધા જ ક્લાસ 3માં આવતા વિષયો આવરી લેવામાં આવે છે. આ તમે ફેકલ્ટીઝ દ્વારા જે કોચિંગ મળે છે એની સાથે સાથે બીજું તો તમને શું મળે છે, બરાબર? તો ભાઈ ફ્રી 9,000 રૂપિયાનો જે ઓનલાઈન વિડીયો કોર્સ જે છે કે જેમાં તમે અમને જોઈ રહ્યા છો એ કોર્સ તમને ફ્રી ઓફ મળશે આ જનરલ બેચમાં જોડાવાથી. હા, સાથે સાથે શું મળે છે તો ફ્રી મળે છે બીજી વસ્તુ કે ભાઈ 15+ પુસ્તકો, સાથે સાથે જે સ્ટડી મટીરિયલ આવશે એ પણ તદ્દન તમને ફ્રી રહેશે, બરાબર? જે ફી થશે એ ફી મુજબ તમને ફીમાં બધું જ કહેવાય છે આવરી લે છે. પ્લસ તમે અહીંયા જોડાવો છો, તમારું દરરોજનું મૂલ્યાંકન થવું જરૂરી છે, માટે દરરોજ, પછી દર અઠવાડિયે, કે કદાચ રિવિઝન કરવાનું ભૂલી ગયા હોય તો પછી અઠવાડિયે ભૂલી ગયા હોય તો પાછું ફરીથી અમે તમને યાદ કરાવી અને અમે તમને કહેવાય છે કે એક મકાનની જેમ મા બાપ બાળકની મરમ્મત કરતું હોય છે એમ હંમેશા અમે તમને સતત એ મૂલ્યાંકન કરતા રહીશું અને સાથે સાથે દર મહિને પણ ટેસ્ટનું આયોજન કરીશું.
ઓકે, આ ટેસ્ટ સિરીઝ જે છે એ સમય સાથે પરીક્ષાની બદલાયેલી પરિસ્થિતિ અને પદ્ધતિ મુજબ જ કહેવાય છે કે આ ટેસ્ટનું આયોજન હોય છે. તો મિત્રો, જો હજી પણ કહીએ છીએ કે 22 ઓગસ્ટથી આ શરૂ થાય છે, જેનો ટાઈમિંગ સવારનો 8 થી 10નો રહેશે, અને આવા સરસ મજાના સ્વચ્છ વાતાવરણ ગાંધીનગરમાં, બરાબર છે, આપણા ગ્રીન સિટી ગાંધીનગરમાં તમને 8 થી 10ના સુમય વાતાવરણની અંદર સારું એવું અધ્યયન પ્રાપ્ત કરવા મળશે. અને આ અધ્યયન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે અહીં છો, અહીંથી તમે છેક સુધી કહેવાય છે કે આગળ જે જવા ઈચ્છો છો, તમારા જે ધારેલા દિવાસ સ્વપ્નને અમે સાકાર કરવા સજ્જ છીએ. શું તમે સજ્જ છો કે નહીં? તો આજે જ સંકલ્પ કરી લો કે કાં તો તૈયારી કરવી છે, કાં તો પછી પુસ્તક જ નથી પકડવું. બેમાંથી એક નિર્ધારિત કરી જો. જો ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ પાસ કરી હોય તો મિત્રો એટલું યાદ કરી લો કે 6 મહિના તો તમારે બેસી જ જવું પડશે. ઓકે, ચાલો તો શરૂઆત કરીએ છીએ હવે આપણે પ્રશ્નની. ઓકે, તો આપણે આ ખાસ કરીને ટેટ ટાટમાં લેવાની જે પરીક્ષાઓ હોય છે, બરાબર, અને એમાં હિન્દી ભાષાના જે શિક્ષકો હોય છે એમને હિન્દી પૂછાતું હોય છે, બરાબર. જે એમાં ભાષાના શિક્ષકો માટે હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત 4 લેંગ્વેજ આવે છે. જેમાંનો આપણે પહેલી પરીક્ષા જે 2017માં લેવાઈ ટેટ 2ની, એમાં પ્રશ્ન પૂછાયો હતો कि स्त्रीलिंग शब्द ढूंढिए. चलो, हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं. जब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हमें एक आनंद अंदर से होता है कि भाई एक अंतरात्मा हमारी बोल रही है कि भाई ये तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा तो हमें अचूक आनी ही चाहिए. ओके, थोड़ा बहुत हमें प्रयत्न करना है कि हिंदी कैसे बोल सकते हैं. ठीक है, चलो. तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है बरसात, बी इम्तहान, सी अंगूर और डी है टिकट. यहाँ आपको क्या ढूंढना है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपको बताना है हमें कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है. ओके, बाकी आप सबको बताना नहीं है कि भाई स्त्रीलिंग शब्द के अलावा कौन है. बस जैसे कि आप स्त्रीलिंग शब्द पूछना चाहते हो, स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना चाहते हो, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग गुजराती में, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે જ્યારે પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ શબ્દ શોધતા હોય તો પુલ્લિંગ માટે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કેવો, સ્ત્રીલિંગ માટે પ્રશ્ન પૂછીએ કેવી, અને નપુંસકલિંગ માટે પ્રશ્ન પૂછીએ કેવું. બરાબર. તો એ જ રીતના આપણે વરસાદ, કેવો, એ પુલ્લિંગ, આપણે પુલ્લિંગ થાય, બરાબર છે, શેમાં? તો ભાઈ ગુજરાતીમાં. પણ અહીંયા તમે એમ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ બરસાત कैसी हो रही है, તો મૂસલાધાર हो रही है, બરાબર છે, જબરદસ્ત બારિશ हो रही है, બરાબર. બરસાતને બીજું બારિશ પણ કહેવાય છે. તો આપણો જવાબ બને છે કયો ખબર છે? એ. કેમ કે આ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. इम्तहान कैसा, ये तो पुल्लिंग है. अंगूर कैसा, ये भी पुल्लिंग. टिकट कैसा है, तो ये भी पुल्लिंग. बाकी ये ए आंसर जो है वही स्त्रीलिंग शब्द हमें बताता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, वचन परिवर्तन की गलत जोड़ पहचानिए. भाई वचन परिवर्तन એટલે શું? તો ભાઈ વચન પરિવર્તન એટલે કે એક વચનમાંથી બે બહુવચન કર્યું હોય તેવા શબ્દો આપણે શોધવાના છે. પણ કેવા? તો ભાઈ ગલત જોડ, ખોટી જોડ હોય તેવી શોધવાની છે, બરાબર. તો ભાઈ ચલો, नेता, तो नेता का नेता ये होगा कि नहीं? तो भाई हम बताते हैं कि भाई यस, आंसर ए आएगा कि नेता का नेता नहीं होगा, नेता का नेता ही होगा. क्यों? कि हम अगर नेता बोलने चाहते हैं लेकिन ये एक नेता है, हम ज़्यादातर नेता की बात करना चाहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सभी नेता यहाँ आए. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई सभी नेताएं यहाँ आए. ओके, हाँ, बहु हो तो बहुए हो सकता है, सड़क हो तो सड़क की जगह पे सड़कें हो सकता है. जैसे कि सड़क, सड़कें, बहु, बहुए. लेकिन नेता नेताएं नहीं हो सकता. जैसे मकान, तो सभी मकान ऐसे बोल सकते हैं. तो दोनों का सही हुआ, एक वचन और बहुवचन दोनों में सही है. बालक, तो या बालक ही होगा, फिर ऐसा नहीं होगा बालके, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. डाकू का डाकू ही रहेगा, सभी डाकू, सभी मकान, सभी बालक. अगर हमें बहुवचन में बोलना है तो इसके आगे सभी ऐसा लगाना होगा. ठीक है. मतलब ये नेताए वाला जो है पोर्शन वो गलत है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम जाएंगे. शुद्ध शब्द पहचानिए. ओके, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है. देखो, सौजन्यता, यहाँ जो ता प्रत्यय जो हमने जोड़ा है वो गलत है.
इसका सिर्फ ऐसा ही आएगा सौजन्य, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ये लोग सौजन्य हैं, अच्छे हैं, भले भले लोग हैं, ऐसे भी बोलते हैं। अब यहाँ कवयित्री की जगह पे का लिखा है कि भाई कवियत्री, क्या लिखा है कवियत्री, तो ये भी गलत है। इसे क्या लिखा जाएगा कवयित्री, मतलब जो फीमेल मतलब पोएट रहते हैं उसे कवयित्री कहते हैं। ओके, बलिष्ठ, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी बलिष्ठ, ये शब्द सही है। बहुत सारे लोग बलिष्ठ की जगह पे बलिष्ठ लिखते हैं, ट लिख देते हैं, तो यहाँ बलिष्ठ आएगा, बलमा। ओके, ओ ऐक्यता, तो डी में ऐक्यता नहीं आएगा, ऐक्यता, ऐक्य आएगा, क्या आएगा ऐक्य। यहाँ जो ता वाला जो है वो गलत है। जैसे कि हम गुजराती में भी लिखते हैं कि भाई जैसे कि अगवड़, तो अगवड़ता, तो ता प्रत्यय न लगाए, अगवड़, सगवड़, અગત્ય, તો આવા બધા શબ્દો લખવા પડે। આ સાચી જોડ છે, પણ તા પ્રત્યય લગાવવું એ ખોટું છે। ઓકે, તા જેમાં લાગે એમાં જ લાગે, જેમ કે મહત્વ, તો મહત્વતા નહીં મહત્તા, એવી રીતે આપણે જાણવું પડે। ઓકે, તો सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है कि जो वाक्य सही ढंग से लिखा हो पूरी तरह। जो यहाँ हमें गुजराती, संस्कृत और हिंदी में ये बताते हैं कि भाई कोई भी सेंटेंस आप लिखो, कोई भी वाक्य लिखो, तो पहले कर्ता होना चाहिए, फिर होना चाहिए कर्म, और फिर होना चाहिए क्रियापद। ओके, तो इसी तरह हमें वाक्य बनाने हैं, तो कर्ता कर्म प्लस क्रियापद। तो किस तरह हम यहाँ ज्यादातर कर्ता कर्म प्लस क्रियापद, ये वाला जो पोर्शन है वो तो एकदम इजी है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सा दिया है। यहाँ कौन सा आपने अनुग यूज किया है, कौन सा प्रत्यय यूज किया है, यह हमें देखना है। जैसे कि परमात्मा का महिमा परम अपार है, ठीक है, तो यहाँ महिमा शब्द जब स्त्रीलिंग है तो उसके आगे आने वाला जो अनुग होगा वो की हो गया, क्या होगा कि परमात्मा की महिमा अपार है, तो यहाँ का वाला जो है गलत है। बंबई की बाजार अच्छी है, तो भाई बाजार की तरफ से नहीं, हमें बाजार का, बंबई का बाजार अच्छा है, तो यहाँ का आना चाहिए था। दैट मीन्स ये भी गलत है। हमें क्या खोजना है, शुद्ध। अब सी और डी दो ऑप्शन रहे। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, भाई ये गलत है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है। लेकिन क्या करना है, देखिए कि किसी का पेन यहाँ रह गया। अब यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई किसी की पेन यहाँ रह गई है, क्योंकि किसी का, यहाँ किसी जो शब्द है वो एक अनिश्चित वाचक है। ओके, और यहाँ किसी व्यक्ति के हम आधार पे ये बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक तरह से किसी का पेन यहाँ रह गया, मतलब ये डी वाला जो आंसर है वो सही हमारा रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानिए। क्या भिन्न अर्थ वाला, मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के अर्थ वाले हैं, एक दूसरे के समान अर्थ वाले हैं, लेकिन एक ऐसा आंसर है, एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से थोड़ा हटके है, अलग है, ठीक है। जैसे कि देखो हम ढांचा, तो ढांचे को क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार से कोई ढांचा बोलते हैं, जैसे कि कोई मैप जिसका समानार्थी शब्द ये भी बन गया, समान शब्द। ओके, तो समान तुक वाला शब्द बन गया नक्शा। ओके, उसे खाका भी बोलते हैं। ओके, कहीं जगह पे हिंदी में खाका भी बोलते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश जाओ, ये वहाँ खाका बोलेंगे। कहीं जगह पे जब कोई पुरातत्वविद जो जानकारी प्राप्त करने हेतु कहीं पे जाते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता की खोज करने जाते हो या किसी भी ऐतिहासिक स्मारक की जब खोज करने जाते हैं, तभी वो एक ढांचे का उपयोग करते हैं, मतलब ढांचा साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि उसी ढांचे के मुताबिक वो किसी क्षेत्र को मतलब खोज सकेंगे, वह खोज लेंगे, ठीक है। वह उसे उन्हें खोजने में ये ढांचा, या जिसे खाका भी कहते हैं या फिर नक्शा भी कहते हैं, वो उन्हें पूरी सहायता करने में मदद करेगा। अब यहाँ रुक का जो शब्द है जो बिना मतलब का है और यहाँ आ गया है, दैट मीन्स ये हमारा डी आंसर आएगा। ओके, कि जो भिन्न अर्थ वाला है, तीनों से अलग हट के है।
गलत जोड़ पहचानिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, गलत जोड़ पहचाननी है। यहाँ बोला है कि भाई पहले खपरेल मतलब नड़ियू। भाई खपरेल का क्या होगा, नड़िया नहीं होगा भाई। ओके, खपरेल का क्या होगा, खपरेल है, कपरेल नहीं है। ठीक है, उपला। ओके, यहाँ गलत जोड़ पहचानने हैं। ठीक है, मतलब खपरेल मतलब नड़ियू सही है। ओके, यहाँ गलत जोड़। उपला मतलब છાણું, जो આપણે ગુજરાતીમાં છાણા કહીએ ને તેને ઉપલા કહેવાય। ઓકે, અહીંયા કંધા લખ્યું છે, શું લખ્યું છે, ધા। અહીંયા સામાન્ય ધ જે છે ને એના કારણે આ કાંસકો નહીં થાય। કંધા એટલે શું થાય, ખભો થાય। કંઘા હોય તો કાંસકો થાય। ओके, अब यहाँ घड़ियाल लिखा है और यहाँ पे घड़ी लिखी है। ठीक है, अब घड़ियाल का घड़ी नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ भी ये जोड़ गलत है, मतलब सी और डी दोनों आंसर गलत है हमारे यहाँ। सी और डी दोनों आंसर गलत है, जो एग्जाम में दिए गए हैं यही मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आंसर की दी गई है उसी मुताबिक आपको बता रहा हूँ। वो क्यों नहीं आएगा भाई घड़ियाल का घड़ी, तो जो यहाँ जो घड़ियाल के नीचे जो नुक्ता दिया है ना उसके हिसाब से ये जो घड़ियाल शब्द है उसकी जोड़ गलत बैठ रही है, बन रही है। ओके, वचन परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए। जहाँ वचन परिवर्तन मतलब कि एक वचन का 2 वचन हुआ हो, ऐसा मतलब अच्छी सही जोड़ पहचानिए। चलो, तो कौन सा आएगा आप बताइए। ऑप्शन ए है नीति नीतिया, बी है वधु वधुए, सी है सड़क सड़के। ठीक है, सड़क सड़के, और डी है गांव गोए। तो कौन सा आएगा आंसर, सही जोड़ पहचाननी है हमें। देखो, जैसे कि भाई वधु तो वधुए ऐसा नहीं होगा, ये वाली जोड़ गलत है। सड़क का सड़के, लेकिन सड़के में यहाँ नुक्ता आना चाहिए, इसके हिसाब से ये गलत बन रहा है। गाँव तो गाँवे, तो ये वाला जो गाँवे लिखा है वो भी गलत है। तो सही जोड़ कौन सी बनी, तो नीति तो नीतिया, ये सही बनेगी। बराबर, सड़क के नीचे यहाँ पे फिक्ट एक नुक्ता नहीं है, उसके हिसाब से ये गलत हो गई जोड़। मतलब कि आपको इस नुक्ता पे भी ध्यान देना है। नुक्ता मतलब किसी व्यंजन या किसी स्वर के नीचे आने वाला एक बिंदु, जिसे नुक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती की शान काव्य के मुताबिक उचित जोड़ पहचानिए। ठीक है, ओके, क्या उचित जोड़ पहचानिए मतलब कि तेरी धरती की शान एक काव्य है जो हमारे धोरण 6 से 8 के पाठ्य पुस्तक में ही एक इन्वॉल्व की गई है। उसके हिसाब से यहाँ उससे बैठ रही हो, उससे बंद बैठती हो, हम गुजराती में कहिए छे ने कि भाई एना बंद बेसती जोड़ આપણે જોવાની છે। तो 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी वाणी में तांडव का ताल है, तेरी मुट्ठियों में युग का आह्वान है, तेरी भ्रुकुटी में छिपा महाकाल है। भाई यहाँ धरती की शान के साथ अगर कोई आंसर बैठ रहा हो तो ये है तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ओके, तो ये आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ओके, सही वर्तनी वाला मतलब क्या, गुजराती में जेने આપણે કહીએ જોડણી, तो साची जोड़नी वालों विकल्प આપણે शोधવાનો છે। तो भाई सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो भाई पहलू, तो ये गलत है। ओके, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक, इस पे एक मात्रा आनी चाहिए। पहलू में ये लू दीर्घ होना चाहिए। चतुर्दशी, अब चतुर्दशी में क्या है मालूम है कि त के ऊपर रेफ दिया गया है, ये रेफ किस पे आएगा, द पे आएगा। चतुर्दशी डी नॉट चतुर्दशी। लेकिन दीपावली में कहीं जगह पे इन्होंने गलती नहीं की है, दैट मीन्स यहाँ बी इज द राइट आंसर आएगा। दीपावली में भी दी और ली में भी ली, दोनों दीर्घ आएंगे, इसके हिसाब से ये वर्तनी हमारी सही है। ओके, शब्दकोश के सही क्रम को ढूंढिए। भाई गुजराती में और हिंदी में ज़्यादातर शब्दकोश जो है वो सही है, एक तरह के एक ही तरह के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। चलो, अगर ए आंसर सही है तो हम किस तरह सही कर सकते हैं। देखो, दिवाली और दिवस, चलो हम दोनों में देखते हैं। भाई दी सेम है। चलो, तो दूसरे नंबर पर जाएंगे। हमें शब्दकोश में हमें पता है कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर अगर एक्स
मतलब एक समान हो, सभी शब्दों के पहले अक्षर एक समान हो तो दूसरे अक्षर को छांटिए। अगर दूसरे अक्षर में भी सभी एक समान निकलते हैं तो तीसरे अक्षर में देखिए, तीसरे अक्षर में जरा गौर कीजिए। ओके, अगर वहां हमें कुछ ऐसा हिल रहा है, कुछ दिख रहा है, ह्रस्व दीर्घ या कुछ मात्रा वगैरह में दिख रहा है, तो फिर उन्हें हम सिलेक्ट करके एक तरह से अच्छा हम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि दिवाली में दीदी तो सही है, लेकिन यहाँ वाह है और यहाँ वह है। अब हम उस 12 अक्षर के हिसाब से जाए तो पहले आएगा वह, दूसरे में आएगा वाह। दैट मीन्स ये वाला गलत है, क्योंकि दिवस पहले आना चाहिए था। ओके, अब यहाँ अलौकिक अंकुर की बात करते हैं। तो चलो भाई, अ तो सेम है, यहाँ भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये अंकुर वाला है, चलो अंकुर वाला हम मान लेंगे, वो बाद में आएगा, क्योंकि हमेशा स्वरों के हिसाब से पहले अ आता है, बाद में अम आता है, बाद में अह ऐसे आता है। मतलब पहला सिंपल स्वर, फिर अनुस्वार वाला, और फिर आएगा विसर्ग वाला कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा। उसी हिसाब से पूरे के पूरी स्वर और व्यंजन की जो है 12 अक्षरी इस तरह ही चलती है। अब यहाँ अब पहले है, लेकिन यहाँ अम वाला जो अंकुर बीच में आ गया, उसके बाद अगोचर है, उसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि ये भी आंसर गलत है, क्योंकि पहले अ वाले सभी शब्द आ जाएंगे, उसके बाद अम वाला आएगा। लेकिन यहाँ अ वाले बहुत सारे शब्द है, लेकिन बीच में ये अम वाला बैठ गया, इसके हिसाब से ये वाला भी आंसर जो है गलत है। ओके, अब बात कर रहे हैं तीसरे की। तो भाई तीसरी बात में यहाँ है कि भाई तीसरे शब्द में यहाँ है कि खड़ाऊ, यहाँ भी ख ख ख ख शब्द लिखा है सभी, लेकिन ख के बाद में कौन सा शब्द, यहाँ ड है, यहाँ ड है, यहाँ ट है, यहाँ र है, लेकिन ये आना चाहिए था ज वाला, क्योंकि शब्दकोश के क्रम में व्यंजन के मुताबिक हम चले तो क के बाद में आएगा क, क्ष, ख, ग, ग, च, छ, ज आएगा ना। तो ये खजाना पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया नहीं है। दैट मीन्स ये गलत आंसर है। तो अब सीधे तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही रह जाता है, तो भाई डी इज द राइट आंसर। लेकिन ये आंसर भी गलत है। क्यों गलत है? हाँ, हमारी एग्जाम के जो ओरिएंटेड हम चले तो ये प्रोविजनल आंसर के में ये आंसर भी सही दिया है, फाइनल में भी ये आंसर सही दिया है, लेकिन यहाँ जो शंख के ऊपर जो बिंदु लगा है वो बिंदु वाला श बाद में आता है, पहले कौन सा आएगा? सिंपल श आएगा। इसके हिसाब से ये वाला भी गलत ही होगा, मतलब चारों के चारों ऑप्शन गलत है। लेकिन इस दोनों के हिसाब से देख लिया जाए तो इसमें ये सिर्फ यही गलती की है इन्होंने। इसके हिसाब से हम उनके हिसाब से, हाँ अपने हिसाब से नहीं, या मेरे हिसाब से भी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उनकी आंसर की के मुताबिक ये आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही आपको हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, गुजराती, इंग्लिश और सभी जितने भी विषय, मतलब કે આ બધા જ વિષય, ભાઈ રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે, ક્યારેક એમાં આપણે વળી જઈએ, બરાબર છે, તો ગંગાના વહેણની જેમ આપણે તરી જઈએ છીએ, પરંતુ આવાના આવા વિડીયો તમે જોવા ઈચ્છો છો તો મિત્રો એક અમે તમારી પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે પહેલાં તો જો તમે નવા છો આ ચેનલ ઉપર તો વેબ સંકુલ ચેનલને પહેલાં તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પર ઓલ કરજો, જેથી તમને તમામ નોટિફિકેશનો જે છે એ સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। બીજા નંબરમાં કામ કરવાનું છે કે આ વિડીયો જો તમને ગમે છે તો પહેલાં એક લાઇક તમારા તરફથી આપજો, અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં કે તમારા મિત્ર વર્ગમાં કે તમારા તમામ જેટલા પણ ગ્રુપ્સ છે એ ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો। હા, હોઈ શકે છે કે કોઈ એવો વિદ્યાર્થી, કોઈ એવો મિત્ર કે જે પૈસા નથી ખર્ચી શકતો, આર્થિક રીતે એ સદ્ધર નથી, તો એને આ વિડીયો જે છે એ ફ્રી ઓફ રીતે પણ કહેવાય છે કે એને મદદરૂપ થશે। બસ અમારો આ હેતુ છે કે યુટ્યુબ મારફતે અમે આપ સૌની સમક્ષ દરરોજ આવતા રહીએ અને કંઈક ને કંઈક નવો પીરસતા રહીએ, જેથી આપના જ્ઞાનમાં વધારો થાય। આવા વિડીયો જોતા રહેજો, અને તમે જે આ વિડીયોને પ્રતિસાદ આપ્યો છે એના બદલ અમે ખરેખર આપ સૌના ઋણી છીએ। ફરીથી મળીશું। જય હિન્દ, જય ભારત, નમસ્કાર।